Hello everyone. We are going to analyze the Civil Services Prelims 2025 UPSC CSE 2025 paper. Okay. So what do we mean by analysis of the paper? So we are not going to solve it. In this video, my objective is very clear. Objective is to understand that how what score was practically possible. Okay, practically possible with average amount of knowledge what score was practically possible, keeping in mind the mindset of solving question during the examination. Okay, that mindset we'll keep in mind. Okay, we'll try to solve through knowledge plus elimination skills plus intellectual guesswork. Okay, not the wild guess. Okay, and other factors that we'll see from here onwards. So this is our objective, to understand how to reach a score of, let's say, 100 was easily possible with the kind of knowledge that an average aspirant has with him. Okay, so this is our objective, and okay, let's move forward. So this is about me. Okay, so this is about me. I've cleared multiple prelims. Some screenshots are here. So this is for 2024. Then I've cleared the 2025 CSE. Here is my name. Then I've cleared the Indian Forest Service. This time the 2025 prelims, I got a score of somewhere between 108 to 118 or 20 from various institute. Yes, the marks was quite in a range this year. Okay, so as and when the mark sheet is going to be released, I'll show you my mark sheet also. Okay, let's move forward. Okay, so how we are going to do go about it? Okay, so our objective was to understand the score possible. Okay, score possible, how the score of 100 was easily possible here. Okay, 100, I would say I have scored an average of 110 and it was possible, but let's say the score of 100 which was practically possible. So to calculate the score, we need to understand and categorize the question into three category, which is easy, moderate, and tough category. What do we mean by easy? These are the standards, okay, on which we are going to uh, understand, on which we are going to base the questions. We are going to understand that how to categorize it. So for easy, I've considered it as those questions which have options which are very fundamental in nature. Okay, the knowledge that one good UPSC aspirant should have. Okay, then comes something in option. There is an option which is directly picked up from the NCRT. Let's suppose picked up directly from the NCRT. So this is non-negotiable. Okay, then we have something directly from the standard textbooks like Lakshmikant. The standard textbooks as far as UPSC paper is concerned, Lakshmikant, the Spectrum, anything. Okay, whatever is generally read for the UPSC. So if at all a question comes from standard textbook, NCRT, fundamentals, okay, or when one option elimination, one easy option elimination directly gives you the answer of the question. Okay, we'll consider it easy. Easy does not necessarily mean that the question, the options, all options, or the question itself was easy. It is considered easy from the perspective of solving. Okay, if at all the options were very tough but one easy elimination get you to the answer, I will consider it as easy from the point of view of a score calculation, from the point of view of categorization of the question, because our objective is not the test of the knowledge here, not the test of the knowledge, but the scoring of the marks. Okay, then we have moderate category, in which I have placed this 50-50. You have eliminated two options and uh, there are two options left and we are stuck in it. So 50-50 assertion and reason, because sometimes become we understand assertion and reason, but it is like it becomes very tough
to know whether reason explains this or not. Okay, so this question moderate or something which is not directly, which you don't know directly. Okay, so you implied from the other knowledge, one leads to another, and so on. And then the tough category, not covered in usually referred sources. Okay, this only type the new devil in the market. Okay, this only type questions, or like those very factual questions, it can be easy for someone, or and very difficult for you if you don't know it. So we'll see everything. Okay, so note, easy, medium, tough can vary depending on knowledge, intuition, elimination skills, yes, and luck. Obviously uh, it plays a role as far as prelims paper is concerned. Okay, so it plays a role. Okay, so yes, also we are going to so we are categorizing sub questions are easy to medium, so they don't fall exactly in any of these brackets. Okay, or any of the, it is somewhere in between, okay, then it is considered easy to medium. But for the categorization of the question, we will consider it in medium, we'll consider it in tough. Why so? Principle of conservatism. Do try to read it. uh, okay, so we are jumping on directly to the question now. Okay, we will cover one more thing. We will cover this whole series into, I'll not try to make it very long, I'll try to break this video into part like 1, 2, and if needed I'll make a third part also. Okay, so depending also on how you receive it, how you like the video also. Okay, so yes, let's start with the very first question. Okay, with reference to investment, consider the following: how many of the above treated as alternative investment fund? Okay, AIF. So this is the basics of the economy. AIF. So these are categorized into category 1, category 2, category 3. Category 3, 1. Let's start with 1. One consists of those funds which are used in the initial phase of the company when it is set up. Then the capital which is used, therefore the venture capital fund is in the AIF1 category. Similarly, we have AIF2, AIF3. So we'll read in detail about these AIF categories, but this is not our objective today. So just know that this falls under category 3. Okay, this falls under category 1. Okay, even if you don't know. Okay, if you don't know this, how are we going to solve this? Okay, so with alternative investment funds, so these are not the traditional funds. Okay, traditionally invested funds. Okay, these are, so but you know that bonds and shares are the traditional investment, not these one. So therefore only two options are correct here: bonds and stocks. I have considered it as easy because like AIF is something which you all read. It is covered in all the standard sources, and you read it, you solve AIF question definitely in any of the t series you are giving it. Okay, therefore I have considered it as an easy question. Okay, let's move on to the next question, which is the sources of income for Reserve Bank. Okay, sources of income for Reserve Bank. So so the first option is buying and selling of government bond. Obviously, how the let's suppose the RBI buys bond from the US government bond, gilt edge security, which is okay. So it buys it, and these bond carry some interest rate. These bond carry some interest rate, and when they sell it, they get the interest rate payment plus the principal amount. Okay, so that is how they gain. That is how the source of income. This interest rate is the source of income for RBI. Okay, yes. Similarly, the foreign currency, the RBI's forex reserve constitutes or forex reserve constitute different assets, which we'll read someday.
Okay, and one of the major component in the foreign forex reserve is the foreign currency. Why so? Why RBI keeps foreign currency? Because there is fluctuation in the market as far as foreign currencies. Let's suppose you buy dollars, so you buy dollars and dollar is appreciating. So when you will sell dollars, you'll get money. More. Let's suppose you bought. Let's suppose you bought uh, $1, $1 in rupees 50. Okay, but the dollar appreciated too much, to the tune of 2x, let's suppose, just for the calculation purpose. And now this $1 you are selling, and the nominal interest rate has moved 2x. So now when you sell it, you get 100. So from 50 to 100, you get rupees 50. Okay, so very easy concept, no need any explanation. Okay, so yes, this one pension fund management. See, pension fund management is not the prerogative of the RBI. It is done by EPFO, okay, or PFRD. PFRD is the regulatory body and EPFO manages fund. Okay, so these two bodies are involved as far as pension fund management is concerned. So third is definitely incorrect. So when third is incorrect, so you are left with 1 or 2 and 1, 2 and 5. Okay, the fourth option, which is not needed, but let's just for the purpose of knowing what does it say, so we read it. So it says that lending to the private companies, RBI does not do it. It is done by the commercial banks. Commercial banks does it. Okay, anyway, it was not needed to be read, because we are left with 1, 2 or 1, 2 and 5. So the fifth option, printing and distributing currency notes. Now this is something, it is easy, but people get uh, people get stuck here. Okay, why so? Because let me be very frank, I also made it wrong somehow. Okay, which is because I remembered the incident of demonetization, wherein the RBI said this, uh, almost all the money came back to RBI. Okay, so there was no windfall gain. So there was no windfall gain. The potential windfall gain that the RBI expected, they didn't have that. And on top of that, they had to incur cost on printing and distributing of the currency. Okay, so I took it very simply, but this is not what the question is asking. The question says printing and distributing currency notes. So it is talking about the seigniorage concept. Seigniorage. Okay, it says that, let's suppose RBI prints rupees 100 notes, rupees 100 note. Okay, to print this 100 note and to distribute it to the retailer, the banker, or related any stakeholder, it incurs a cost of rupees, let's suppose, 50. Okay, so which is huge, but yes, the face value is 100. Face value is 100 and the incurred cost is rupees 50. So RBI is gaining, not actually, but yes, it is gaining something like rupees 50. Okay, so it is a source of income. Senior just the concept which is to be kept in mind. Okay, so from will not try to will not try to understand the logic, the knowledge behind it. That we will do separately in a very elaborate manner. Okay, so our objective today is to understand that what is the correct, uh, how the elimination works. People say elimination is eliminated, but no, that's not the case. I'll show you, like in 30, 40, like around 25 to 30 question, how elimination is still used. Okay, and you can easily get to the option. Okay, so the answer is 1, 2 and 5. I have considered it as medium, that okay, you can obviously, like, you can obviously go wrong here. Okay, the third question says, with reference to the government of India, consider the following information. Okay, so here we have three organizations given, its functions, and under which ministry or department does it work. Okay, so enforcement directorate, very much in news
very much in news. It was so yes, so it enforces Fugitive Economic Offenders Act. Apart from this, it also works on different acts also. Okay, but it comes under Ministry of Finance. Okay, not under the Home Ministry. So therefore, this is wrong. Okay, this is wrong. Therefore, this statement becomes wrong. These three have to be in sync. Okay, in sync as in like these three have to be correct. Okay, this department doing this function and it comes under this ministry. Okay, which is not the case here. Therefore, this one is wrong. For the Department of Revenue and Intelligence, DRI, yes, it enforces Customs Act and it comes under Department of Revenue. Therefore, it is correct. But you would not know it. Like this is very factual. The Director General of Systems and Data Management, yes, it comes under this ministry, but the uh, and data management, it can confuse you. Yes, like it had to do with big data analytics in the system, but this function is done by different ministry, different department of the Ministry of Finance. Okay, which deals with the big data analysis to understand the evader, the tax evaders. Okay, so this one is correct. Why? Because this link is incorrect, this is right. Okay, so this option is incorrect, this option is incorrect, only this is correct. Now while solving it, I'll consider it as a very factual question. Three organization, its function, and it works under which ministry. If at all you go wrong anywhere, okay, if at all you go wrong anywhere, you are going to mark this wrong. So this is factual and very tough question. I'll consider it as a very tough question. Next question. Reserve Bank mandates all the listed companies. Whenever it when it says Reserve Bank and listed companies, it should ring a bell in your head. Okay, and they have to submit a BRSR report. What is BRSR? Business Responsibility and Sustainability Report. So the name itself, BRSR name itself, responsibility and sustainability, it sounds like ESG report. Okay, environmental and social governance report. It sounds like that. Okay, let's keep it on hold and let's see the another option. It says a company submitting BRSR makes disclosure in the report that are largely non-financial in nature. Obviously, when it is talking about BRSR, which the UPSC wanted you to know, its full meaning, which is Business Responsibility and Sustainability Report, responsible and sustainability, these are non-financial domain. Okay, this fall under ESG. Okay, so second is likely to be correct. It's likely to be correct. I didn't know about this question, but I marked it correct. Okay, how? Let me tell you. So this is likely to be a very very genuine statement. Okay, and you have to take guess, and you can't leave these type of question. Okay, just because you don't know this report, there are plenty of reports that are released every year. Okay, so but you need to take uh, a genuine intellectually informed guess here. Okay, so BRSR disclosure in the report that are largely non-financial. Okay, okay. Second, the in the first statement it says Reserve Bank mandates that all listed companies to submit. See, listed companies is a domain of SEBI. RBI does not directly deal with listed company or does not issue instructions directly to listed companies as far as these report reports are concerned. Okay, so I consider it in the examination hall that it would be SEBI and they are trying to bluff you with Reserve Bank. So I marked it wrong and this one is correct and this was the answer also. Quite easy. So, but I have considered it in easy to medium category. When we will when we will try to calculate the score, we will consider it in medium category only because you could have done wrong here also. Okay. Next question. In India, income from the allied agricultural activities like this in rural areas, income from allied in rural areas exempted from any tax. ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज से बनने वाला था. ओके, जनरल नॉलेज से कैसे? आपने देखा होगा that in rural areas there are, let's suppose there are many allied activities going on. Let's suppose people are into fisheries. Okay, fisheries. So and they are earning, there are some farmers which are into fisheries and they are earning huge. Okay, so government, there is no point government not taxing it. Okay, so this one is incorrect statement. By that logic, this poultry business would, poultry and rearing business, breeding of breeding for mutton and all, this like ये consider होता है. Okay,
ठीक है. So therefore it is wrong option. Second, in India, rural agricultural land is not considered a capital asset in income tax. Very true statement. बहुत बार आपने सुना भी होगा इस चीज़ को, एंड बहुत बार इसलिए भी सुना होगा क्योंकि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ये एक पॉलिटिकल इशू होता है. ओके, द एग्रीकल्चरल थिंग इज द एग्रीकल्चरल income is not considered, it does not fall under tax. Yeah, tax what टैक्स में सो फॉल नहीं करता. देयरफॉर ये स्टेटमेंट सही है. इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट. मैं इसको इजी समझता हूँ बिकॉज इट इज़ क्वाइट डुएबल फ्रॉम द जनरल नॉलेज कि अलाइड एक्टिविटी को क्यों हम लोग टैक्स नहीं करेंगे, पोल्ट्री को क्यों नहीं टैक्स करेंगे. ओके, देर इज दिस ह्यूज लेयर फार्मिंग बिजनेस एंड वॉट नॉट. ओके, दीज आर ऑल अलाइड एक्टिविटी ओनली. तो कोई मतलब नहीं है. अगर आपको ये नहीं भी पता है, लेट्स सपोज व्हाई आई हैव कंसिडर्ड दिस एज इजी इनटू इजी क्वेश्चन, बिकॉज हो सकता है ये आपको नहीं पता हो, बट नॉट टू टैक्स एलाइड एक्टिविटी इज समथिंग वेरी बिजार. ओके, तो अगर पहला गलत है आप कर लेते हो टिक, सो यू डायरेक्टली कम ऑन टू ऑप्शन द राइट आंसर. ओके, there is only one answer in which statement 1 is not correct is given. Okay, so this is the answer and easy question. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज ज्वाइंड दिस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर. किया था इंडिया ने, काफ़ी न्यूज़ में भी था, बट लेट्स सपोज कि ये आपको नहीं पता है. अभी आप एग्जामिनेशन हॉल में आपने इसको होल्ड पे रखा है. ठीक है. सेकंड देखते हैं, इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल द 30 क्रिटिकल मिनरल्स. नॉट एट ऑल. अगर ये होता तो हम लोग लिथियम, कोबाल्ट, लिथियम सारा का सारा चाइना से क्यों मंगवा रहे हैं, कोबाल्ट अफ्रीका से क्यों आ रहा है. ठीक है, निकल आ रहा है कहीं से. ठीक, सो ये ऑप्शन गलत है, सेकंड गलत है. द मोमेंट आपको पता चला सेकंड गलत, यू आर डायरेक्टली गेटिंग द आंसर विच इज सी 1 and 3 ओनली. देयरफॉर आई हैव कंसिडर्ड इट एज इजी. ओके, ठीक है. यस, दिस क्वेश्चन, as regards return from an investment in a company, generally bond holders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. stockholder कौन, जिनके पास शेयर्स होते हैं कंपनी के. दो शेयर्स होता है, शेयर्स मतलब आप शेयर्स होता है, इसका मतलब है कि आप उस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस में हैं, आप उस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस के हिस्सा हैं. यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी. बी इट अ 0.0001% ऑफ ओनरशिप, ये इतना ही होगा बिकॉज लेट्स सपोज यू हैव whatever you have purchased share, you get some ownership. So when you are owner, you are going to face the profit and loss scenario of that company. Okay, so yes, just a second. Yes, so but bondholders are what? Bondholders are the they are the financial creditors. They give loan to company. Okay, when we will read the knowledge behind it, we'll try to understand the PYQ series करेंगे. तो what is this financial creditor, what are these operational creditors, and then इनकी क्या प्रायोरिटी है इन सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसमें क्या प्रायोरिटी है, सारी चीज़ों को उस टाइम जानेंगे. अभी हमारा मोटिव वो नहीं है, सो हम लोग ये कर रहे हैं. ओके, हमें इसे ब्रीफ रखना है. ओके, सो दिस इज एज रिगार्ड द रिटर्न्स फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी. ठीक, आपने इन्वेस्टमेंट किया है. बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क. हाँ, क्यों? क्योंकि बॉन्ड होल्डर्स को जो होता है वो फेस वैल्यू वो लिखा होता है कि आप जो बॉन्ड्स कंपनी की निकलती है उसमें होता है ऑलरेडी कि ये 5% पे है, ये 4% पे है. सो दिस इज फिक्स. यू कांट गेट एक्स्ट्रा फ्रॉम दिस 4% और 5% वट एवर इज, बट आपको इससे नीचे भी नहीं मिलेगा. Okay, that is also true. So very risk averse instrument. Okay, but that is not the case with stocks. When you buy shares, तो शेयर्स की प्राइस बहुत ऊपर जा सकती है, बहुत ऊपर, और बहुत नीचे भी जा सकती है. सो देयर इज अ ह्यूज रिस्क अटैच्ड. बहुत सिंपल कंसेप्ट है, नो नीड फॉर द एक्सप्लेनेशन. ये सब जानते थे. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, इसको हम लोगों ने इतना डिटेल में इसलिए जाना क्योंकि हमें जानना पड़ेगा कि क्या स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है. तो स्टेटमेंट 1 में बेसिकली हम लोग क्या जानने का कोशिश कर रहे थे, ये कि बॉन्ड सेफर होते हैं एंड शेयर्स जो होता है वो उतना सेफ इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है. स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं. बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू अ कंपनी, जो मैंने बोला था. यस, दे आर लेंडर, दे आर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स. ओके, वेयर इज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर. यस,
जो डिस्कस किया था, ट्रू and it explains also. When you are a lender, you have a fixed rate of interest on which you are lending money to the company, but that is not the case with shareholders, stockholders. Okay, ठीक है. So this explains. Okay, then for repayment purposes, IBC में ये आप पढ़े होगे, IBC में पढ़ा होगा, एक doable question था. Bond holders are prioritized over stockholders of a company. Yes, this is true. They have a priority of financial creditors, operational creditors, and so on. And then in the very last you have those shareholders and everything. So they have quite a huge priority, bondholders. Okay, एक केस भी था कोर्ट में, उसमें भी ये जजमेंट आया हुआ था. एनीवे, सो मैं इसको ईजी टू मीडियम कंसिडर करता हूँ. ओके, कि हो सकता है कि आप शायद स्टेटमेंट 3 भी एक्सप्लेन कर रहा है नहीं, 2 भी एक्सप्लेन कर रहा है नहीं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, बट देन आई थिंक इट वॉज ईजी, बट इन एनी केस इट वॉज मीडियम कैटेगरी. ओके, ठीक है, तो इसको ईजी टू मीडियम करते हैं. नेक्स्ट, India accounts for a very large portion of all equity options, all traded globally. पूरी दुनिया में जितना भी इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहा है, इक्विटी ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट जितने भी ट्रेड हो रहे हैं ग्लोबली, इसका इंडिया एक बहुत बड़ा पार्ट है. ठीक है, चलो इसको होल्ड करते हैं, देखते हैं. ये काफ़ी फैक्चुअल स्टेटमेंट, इसको होल्ड करते हैं. सेकेंड, India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. काफ़ी एक्सट्रीम सा लग रहा है सुनने में, बट हो भी सकता है, इसको भी होल्ड करते हैं. ठीक है. There is no regulatory body either to warn the small investor about the risk of option trading or unregistered financial. फिर से भी क्या कर रही है, फिर से भी को बनाया क्यों गया, ये रेगुलेटरी बॉडी क्यों है? To protect the small investor first. इसीलिए जो कंपनीज के BOD होते हैं वहाँ पे जो स्मॉल शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी हित को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं उनका भी यही रोल होता है. ये भी कैसे, ये भी सेबी ये भी चीज़ देखता है. तो ये तो बिल्कुल गलत है कि देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी टू इधर स्मॉल. ठीक है, तो अगर थर्ड गलत है, अगर ये थर्ड गलत है तो 1 and 2 ईजी क्यों था? बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन. ओके, अदरवाइज यूपीएससी नहीं चाहता था आपको इतना फैक्ट्स पता हो कि हमने कभी हांगकांग को सरपास किया है नहीं किया, हालांकि हम लोगों ने किया था एक क्वार्टर में, हांगकांग को किया था. ठीक है, ऑल इक्विटी ऑप्शन जितना भी ट्रेड होता है ग्लोबली, इसका एक मेजर पोर्शन ये भी सही है. इंडिया ऑलमोस्ट लाइक I don't remember actually, it is somewhere around 50-60% something around सारे जो equity options हैं. ठीक है, so easy because of elimination. Okay, not because of these two options. Had there not been these options तो फिर वो बहुत tough question हो जाता. Okay, so therefore it was easy. ठीक है, काफ़ी easy. Circular economy reduces GHG, circular economy reduces the raw material as inputs. Yes, आप उसी रॉ मटेरियल को बार बार यूज़ करते हैं तो रिड्यूस करता है. ठीक है, रिड्यूस द वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ऑब्वियसली वेस्टेज भी प्रोडक्शन, आप माइनिंग ही नहीं कर रहे हो नए मटेरियल्स की, बहुत कम माइनिंग कर रहे हो. ठीक है, तो आप GHG को भी बचाओगे, ये करोगे. एंड दीज टू एक्सप्लेन लाइक क्वाइट ईजी. ठीक है, तो इसलिए ये अगला है, कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लाइबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. लाइक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हम लोग, और उसमें जो इनिशियली जो भी हम लोग पढ़ते हैं, जो बाइफर्केशन होता है जब बजट भी पढ़ रहे होते हैं या कुछ भी, उसमें जो हम लोग कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ओके, देन वी हैव कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे हेड्स को पढ़ते हैं. तो उसमें क्लियरली NCERT में लिखा हुआ है, क्लियरली NCERT की ये लाइन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th की NCERT है, वो लिखा गया है कि कैपिटल रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी और कॉज अ रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, ठीक है, so this is correct. Then borrowing and disinvestments are capital receipt. अगर ये स्टेटमेंट सही है तो ये दोनों फिट होना चाहिए. ओके, सो कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लाइबिलिटी या तो क्रिएट करेगा या रिडक्शन इन द एसेट्स क्रिएट करेगा. अगर हम बोरो करते हैं, अगर इंडिया बोरो करती है बाहर से, तो ये हमारे लाइबिलिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि फ्यूचर में लाइबिलिटी क्या है, फ्यूचर में हमें उसको रीपे करना पड़ेगा.
रीपे करना पड़ेगा। सो इट इज क्रिएटिंग लाइबिलिटी, यस इट इज क्रिएटिंग लाइबिलिटी। तो बोरोइंग वाला तो ठीक है, ये कैपिटल रिसीट है। देन डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट करने से कंपनी इंडिया के पास एक कंपनी थी जिस सारी के सारा 100% इंडियन गवर्नमेंट के पास था। लेट्स से ये इसमें से 51% किसी को सेल करते हैं, तो जो ये 51% शेयर्स के करस्पॉन्डिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट हम लोगों के पास या लॉस जो भी आ रहा था वो गवर्नमेंट के पास आ रहा था। ओके, अब वो नहीं है, आपने सेल कर दिया है, सो यू आर रिडक्शन इन द एसेट्स। ठीक है, ये एसेट रिडक्शन है, ठीक है, तो ये भी है, तो मतलब ये भी सही है। बट मैंने इतना एक्सप्लेन किया, बट ये लाइक बहुत ईजिली हर जगह अवेलेबल होता है एंड आई अंडरस्टैंड, आपको पता भी होगा। ओके, पहला। दूसरा, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, इंटरेस्ट रिसीव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, लेट्स सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेट्स सपोज किसी गवर्नमेंट को, किसी एक्स गवर्नमेंट को अगर लोन दिया है, ठीक है, तो जो हम लोगों ने लोन दिया है, यस, जो लोन दिया है उसके बाद में ये जब लोन रीपे होगा, जब ये लोन रीपे होगा, तो जो लोन रीपे है वो कैपिटल रिसीट होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एसेट था, लोन हमारा एसेट था, वो रिड्यूस हो रहा है, तो वो तो एसेट का डिक्रीमेंट है, वो कैपिटल रिसीट होगा। बट जो इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट हमारे किसी भी एसेट को नहीं घटा रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी का में इंटरफेयर कर रहा है। देयरफॉर इंटरेस्ट रिसीट इज एक्चुअली रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। व्हाट काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट? इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ओके, सो ये नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट है। ठीक, काफ़ी इजी और सॉल्वेबल था। तो इंटरेस्ट रिसीट ऑन लोन्स क्रिएट्स अ लाइबिलिटी, नो इट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी। सो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है। ओनली इफ यू न्यू कि थर्ड तो गलत है, यू कुड हैव इजीली अराइव्ड एट द आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा तेज करते हैं, ऑब्वियसली आप, ठीक है। राजा राम मोहन राय के बारे में पूछ रहा है, पर ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। यस, पूरा की पूरी इनकी फिलॉसफी ही वेदांता पे थी। वेदांता का सब्जेक्ट क्या था? वेदांत का सब्जेक्ट क्या था? वेदांता का सब्जेक्ट जो था वो फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ वेदास से था, ठीक है। सो यस, ट्रेडिशनल फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट, यस। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच, यस, ही वांटेड के साइंस ऑफ द वेस्ट एंड स्पिरिचुअलिटी एंड दिस लिंग्विस्टिक थिंग ऑफ द ईस्ट, दिस टू नीड टू बी मर्ज्ड। ओके, दीज टू नीड टू बी मर्ज्ड, तो दोनों ऑप्शन सही है, काफ़ी इजी भी था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। ये था डायरेक्टली, ये सब स्पेक्ट्रम में लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए इसलिए लिखा हुआ है। स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, यस, गांधी जी ने बोला था, ठीक। रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक, नहीं, इट वाज अबाउट गिविंग अवे जो टाइटल्स एंड ऑनर्स, नाइटहुड लोग रिटर्न कर रहे थे, फ्रीडम फाइटर्स हमारे नाइटहुड अपना रिटर्न करते, तो इट वाज अबाउट टाइटल्स एंड ऑनर्स जो भी था उसके रिटेंशन को लेकर के नहीं था, गिविंग अवे को लेकर के था, ठीक है। तो ये थर्ड गलत है, बट इसमें हम लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते, ओनली 1 2 3 काइंड ऑफ, ठीक है, तो हमें सारा देखना होगा। सो दिस वाज करेक्ट। सबसे बेसिक जो नॉन कोऑपरेशन का मतलब ही यही है कि वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विथ द इंस्टीट्यूशंस विच यू हैव क्रिएटेड, विद द इंस्टीट्यूशन विच ब्रिटिश हैज क्रिएटेड, उससे हम नॉन कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट के किसी प्रोग्राम को। तो बाइकआउट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन मैनचेस्टर क्लोथ था, लॉ कोर्ट्स था, ये सारा ब्रिटिश रन इंस्टीट्यूशन था, तो इसका ठीक है, ये था। नॉन वायलेंस, यस। रिटेंशन, नो। एस्टेब्लिशमेंट पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट, यस, ये सारा स्पेक्ट्रम में दे रखा है, देयरफॉर आई एम कंसीडरिंग इट एज इजी, ठीक है। नेक्स्ट, द इरिगेशन डिवाइड अरागट्टा, PYQ है, PYQ बहुत, पिछली बार भी PYQ गया था, इस बार वो एक स्टेप इजी आ गए, बट अरागट्टा लाइक सब जान रहे हैं PYQ की वजह से, और वो फिगर भी हमेशा आता है, वो बकेट्स अटैच्ड होता है, ठीक है, वो एक्सटीरियर में बकेट्स अटैच होता है, दिस व्हील इज मूव्ड एंड यहाँ पे पानी है तो वो पानी को कलेक्ट करके दूसरी जगह लेकर के जाता है, लार्ज व्हील विथ अर्दन पॉट्स टाइट टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स, ठीक है। बस, पिछली बार PYQ में पूछा था व्हाट इज अरागट्टा, पिछली बार भी पूछा था, इस बार भी पूछा, इस बार थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा कर दिया, इजिली डुएबल था, ठीक है। उसके बाद ये है, क्यों NCERT 11th में डायरेक्ट लिखा गया है विचित्र चित्त किसको कह रहे हैं। ये अगर आपको ये टाइटल याद नहीं भी है, ये तो डायरेक्टली याद था ना, विचित्र चित्त किसको क्या कहते हैं, महेंद्र वर्मन वन का टाइटल था, ठीक है।
तो इनके और भी टाइटल थे, परहैप्स आई रिमेंबर्ड इनका चैत्यकारी या कुछ था इनका टाइटल, ये भी था। ठीक है, तो एनसीईआरटी डायरेक्टली इजी, मैंने कहा था कि इजी कंसिडर करेंगे अगर डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा होगा। एनसीईआरटी आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे अबाउट इट। बट कौन सी पढ़नी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़ने बैठ जानी है। ठीक है, चलो फिलहाल आगे। फैयान, बहुत ईजी क्वेश्चन कि हुएन सिंह किस में आया था, तो हर्षा में आया था। फैयान कहाँ, चंद्रगुप्त टू में। लेट्स वो his name was in the court of Chandragupta Maurya, Megasthenes. He came in the court of Chandragupta Maurya. फैयान कहाँ आया था चंद्रगुप्त टू में। सो बहुत इजी लाइक हर एक सोर्स हर एक जगह पे इजीली रिटर्न है। कोई भी टेस्ट भी देने जाओ ये मिल जाता है आपको, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा आपको। ये PYQ से हो जाता आपका, बहुत इजी था। ठीक है, दिस टाइम दे आस्क्ड, बहुत दिन के बाद उन लोगों ने मॉडर्न इंडिया से अच्छे क्वेश्चंस पूछे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बट इस बार पूछा तो थोड़ा इजी क्वेश्चंस पूछा। सो अभी नेक्स्ट 3-4 साल आप वापस से कंसिडर करो कि ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन वापस से पूछेंगे, ये पूछेंगे वापस से क्वेश्चन। ये कोर सब्जेक्ट है, आप इनको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इज वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट, आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एक इन किंग्स में से कौन लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट दी श्रीविजय स्टेट Malay Peninsula, which ruled Malay, Sumatra, Java and neighboring Indies। राजेंद्र चोला था। ये भी सारे जगह पे, बहुत जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत जगह पे लिखा हुआ है एंड मैंने तो एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में एक बार पढ़ रहा था कि लाइक ऑन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस के ऊपर था। एंड द ऑथर सेड, द ऑथर ऑफ द आर्टिकल सेड कि कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज ऑफ चोला थी वो उस टाइम भी लाइक उन्होंने उसके ऊपर आक्रमण किया था एंड ऑल। तो उस कारण हिस्टोरिकली एक रेफरेंस दिखा रहे थे कि हिस्टोरिकली स्ट्रेंड रिलेशन रहा है। ठीक है, तो मुझे तो वहाँ से भी याद था। ठीक है, अदरवाइज एनसीईआरटी में भी कवर्ड है ये। ठीक है, बट स्टिल हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसको मीडियम कंसिडर किया है। हाउएवर इट इज़ ईजी, बट ठीक है, काफ़ी फैक्चुअल है। अगर किसी को पता है तो है, नहीं पता है तो नहीं पता है, देयरफॉर मैंने उसे मीडियम कंसिडर किया। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे बहुत टफ लगा। ठीक है, आपको पता अगर होगा विपास बियास को कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी मैपिंग स्ट्रांग है यहाँ, ओके, अगर आपकी मैपिंग स्ट्रांग है, ठीक है, तो यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कुछ तो समझ में आ सकता है आपको। ठीक है, पहला कह रहा था अस्मका गोदावरी। ठीक है, अस्मका वो साउथ का जो किंगडम था वो गोदावरी। गोदावरी आपको यहाँ कहीं से निकलती है होगी। ठीक है, और अस्मका साउथ का कैपिटल था। लेट्स सपोज कि इसको नहीं, ये नहीं पता है। कंबोज एंड विपास है, कंबोज और विपास था। विपास इज द अर्लियर नेम फॉर द करंट रिवर ऑफ बियास। ओके, बियास के लिए। और कंबोज कहाँ पे था, यहाँ पे था। कंबोज यहाँ कहीं था। अब आप बियास का बताओ। बियास यहाँ से निकलती है। ठीक है, ये हिमाचल से निकलती है, ये पंजाब में ही सतलज के साथ मिक्स हो जाती है, ये पंजाब में सतलज के साथ मिक्स हो जाती है। और कंबोज ये वाला एरिया है, तो ऑब्वियसली बियास तो यहाँ से नहीं पास होगा। ठीक है, तो मैंने इसको उस तरीके से एलिमिनेट कर दिया। मैं आपको और भी बताता हूँ। ठीक है, सो कंबोज नहीं हो सकता है। अवंती महानदी, सी इस मैप में, लेट्स सॉरी इस चीज के लिए। ठीक है, सो अवंती उज्जैन वाला है, जिसका कैपिटल उज्जैन था। ठीक है, ये MP का ये वाला जो एरिया है यहाँ कहीं पे। ठीक है, एंड महानदी इस तरफ से निकलती है, MP छत्तीसगढ़, ये जो ट्राई जंक्शन कहीं पे रहता है वहां से निकलती है एंड देन इट फ्लोज ईस्टवर्ड इनटू बे ऑफ बंगाल। ओके, एंड अवंती इसके वेस्ट में है और ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो ऑब्वियसली ये इसको मीट नहीं करेगी। देयरफॉर अवंती वाला ऑप्शन भी गलत है, कंबोजा वाला भी गलत है। ठीक है, लेट्स सी अनदर ऑप्शन। ओके, सो द नेक्स्ट इज कोसला। कोसला का कैपिटल क्या था, श्रावस्ती था। ओके, सरयू। कंफ्यूजिंग है, मुझे भी नहीं पता था ये चीज़ कि हाँ एग्जैक्टली वहाँ से, बट ये ठीक है कि लोकेशन तो वैसा वहीं कहीं है,
बट एग्जैक्टली करेगा या नहीं करेगा। कोसला श्रीवस्ती वो ईस्टर्न यूपी का एरिया है, ठीक है, यहाँ पर से सरयू भी आती है, तो ये भी था कि हो सकता है। ओके, तो ये हो सकता है, ये दोनों गलत है, बट इट वॉज टफ बिकॉज ऑप्शन एलिमिनेशन वाला था ही नहीं। ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ईदर यू नो और यू डोंट नो। ठीक है, मेरी मानो अगर आपने अटेम्प्ट अच्छे खासे ले लिए हैं, लाइक इफ यू आर अराउंड 82 82 85, छोड़ना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को। टफ है क्यों कि ये जान, पहले तो ये जानना कि विपास का नाम बियास था, फिर आप बियास से निकाल पाते कंबोज में है या नहीं है। अवंती का कहाँ एरिया है, महानदी कहाँ से निकलती है ये जानना होता। कोसला श्रवस्ती है, श्रवस्ती ईस्टर्न यूपी में आता है, सरयू कहाँ से बहती है ये है। अस्मका जानना है, गोदावरी जानना। सो इट वॉज क्वाइट अ टफ क्वेश्चन, मेरे लिए टफ क्वेश्चन था। ठीक है, आई कंसिडर इट एज टफ। नेक्स्ट, फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल सेटअप इन 1901 बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर was where, तो काफ़ी फैक्चुअल टफ, मैंने इसको टफ माना है। आंसर लाहौर है। ठीक है, गंधर्वा से अगर आप कुछ इस एरिया को डिकोड करना चाहें, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, बट देन इन एग्जामिनेशन हॉल आप डरते हो इस तरीके की एक्सट्रापोलेशन से एंड ऑल। ठीक है, तो मैंने इसको टफ माना है। कोई ये गंधर्वा वाला एरिया एंड लाहौर के साथ कनेक्ट किया होगा और उन्होंने सही भी किया होगा, बट ठीक है, मैं अभी के लिए इसको टफ मानता हूँ। ठीक है, फिर आते हैं इस पे, फिर से नॉन कोऑपरेशन। इस बार तो नॉन कोऑपरेशन दो क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स। यस, याद करो पिछले भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाले में एक ऑप्शन दे रखा था स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस का। ठीक है, अगर वहाँ आप कंफ्यूज होते वापस से इस क्वेश्चन को टकराते तो आपको लगता है कि यस, कुछ तो यूपीएससी कहने भी जा रही है, यहाँ पे कहना भी चाह रहा है। ठीक है, सो अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय पीसफुल मीन्स लेजिटिमेट, यस इट वाज देयर। ठीक है, गांधी जी ने कहा था कि हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और अगर नॉन कोऑपरेशन अच्छे से होता रहा विद इन अ ईयर हम लोगों को स्वराज मिलेगा। ठीक है, नहीं मिला हम लोग फुल फ्लेजेड सीडीएम स्टार्ट कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, जो कि कभी हो नहीं पाया बिकॉज ऑफ द चौड़ी चौड़ा, बिकॉज ऑफ द चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट जो फेब 1922 आई गेस में हो गया। तो उसके बाद गांधी जी ने कहा कि मासेस आर नॉट येट रेडी टू अंडरस्टैंड कंप्लीटली व्हाट इट मीन्स टू बी what it completely means to be non-violent. ओके, तो गवर्नमेंट सॉरी गांधी जी ने उसे वापस ले लिया था। ठीक है, सो सेकंड सही है बिल्कुल, फर्स्ट भी सही है। क्लियरली स्पेक्ट्रम में दे रखा है, क्लियरली स्पेक्ट्रम में दे रखा है, इसलिए मैं इसे इजी मानता हूँ। ठीक है, 21 टफ है। ओनली ओनली काइंड ये है, इसमें से कौन नाटो के मेंबर है नहीं है, मुझे ये टफ लगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ये टफ है। ठीक है, मुझे ये भी टफ लगा कि एंडीज माउंटेन पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ दिस। अब ये वेनेजुएला, आपको एग्जैक्ट ये जो सॉरी ये जो है एंडीज साउथ अमेरिका के इस वाले बॉर्डर पे आता है, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे आता है। ठीक है, यहाँ ऐसा है कि यहाँ बहुत सारी कंट्रीज के लगते हैं, तो ये भी टफ था मेरे लिए, ये भी टफ था, तो मैंने ये भी छोड़ दिया। ठीक है, मैपिंग पे बट क्वेश्चन है, आप देख लो नाटो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे ये क्वेश्चन था, आगे भी बहुत सारे इंटरनेशनल, इसलिए आई आर फॉर प्रीलिम्स इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये मैपिंग भी, अब ये मैपिंग का नहीं है बट ये मैपिंग का है, और ये अच्छा खासा मैपिंग का है। ठीक है, कि एंडीज कहाँ कहाँ से क्रॉस हो रही है। आइडियली अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो प्रीलिम्स को 5 महीने, तो आपको ये पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, बट मुझे खुद भी कंफ्यूजन था एक्चुअली इस क्वेश्चन में, तो मैंने छोड़ दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। लेक टैंगानिका, ये सब सुने होते हैं अफ्रीका में। ठीक है, बट ये टॉनलेस है, पैटोस, पैटोस भी मैंने कहीं सुना था, एक फेंट सा आइडिया था, बट मुझे ये भी नहीं लग रहा था, तो मैंने ये आइडिया नहीं था एक इसके बेसिस पे। एंड देन अगेन ओनली सी, ये क्वेश्चन इसलिए टफ है क्योंकि आपको इसमें से पता है, दो चार का आपको पता है क्या है क्या नहीं है इसमें से, बट ऑप्शंस इसको बहुत टफ बनाते हैं, ऑप्शंस इसको बहुत टफ बनाते हैं। ओनली ऑप्शंस, ओनली वाले। ठीक है, छोड़ सकते हैं आप इसको, आप इन सबको छोड़ भी दो तो भी आराम से इजीली क्लियर होगा प्रीलिम्स आपका। ठीक है, नेक्स्ट, टर्मरिक के बारे में पूछा था, काफ़ी न्यूज़ में था, टेस्ट में कवर था। ठीक है, देखते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड। ठीक है, सुनते तो हैं बट एग्जैक्टली क्या एक्सपोर्टर भी लार्जेस्ट है या नहीं है, लेट्स कीप इट ऑन होल्ड थोड़ा सा। ठीक है, मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया, बहुत ईजिली पॉसिबल है। ठीक है, कि इंडिया का टर्मरिक हल्दी में
बहुत एक लेगेसी है। तो 30 वेराइटीज़ क्या, उससे बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हो सकती है। ठीक है, साउथ इंडिया का ये भी सुना हुआ था कि हाँ साउथ इंडिया में मोस्टली हल्दी जो है वो साउथ इंडिया वाले रीजन में आएगी। ठीक है, सो ये था। ठीक है, सो हमारे पास वन को अगर हम लोग होल्ड करते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शंस आएगा वो दो आता है। ठीक है, क्योंकि टू और थ्री तो सही है, टू और थ्री सही है, टू और थ्री सही है। अब आपके ऊपर है कि वन टू थ्री टू थ्री क्या लगाना है ये, बट इसमें तीनों सही है। यस, ठीक है, सो तीनों सही ऑप्शंस हैं इसमें। ठीक है, मैंने इसको मीडियम रखा है कि आप हो सकता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ दी टर्मरिक की दोनों है या नहीं है, प्रोड्यूसर शायद हम लोग हैं, एक्सपोर्टर है या नहीं, इसमें कंफ्यूजन हो सकता था। ये दोनों क्वाइट ऑब्वियस सा ऑप्शन था, तो ये इसको आप जनरल नॉलेज के तौर पे इसको आप सही मारते, बट इसका पता नहीं था, तो मैंने इसलिए मीडियम मारा है क्योंकि वो हो सकता है कि आप 50-50 में इसमें आकर के अटक जाए। देन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, फेनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ये एग्जैक्ट चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है, एग्जैक्ट लाइन्स एनसीईआरटी में है, इजी। ठीक, amount of the dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar region. Yes, equatorial and polar region के phenomenon, equatorial region में rainfall का phenomenon बहुत ज़्यादा है और dust नहीं होगा, rain settle down the dust here। ठीक है, settle down करता है dust को, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सही है। सेकंड, subtropical and temperate areas have less dry, subtropical and temperate areas have less dry winds, लेस ड्राई विंड्स। नो, यहाँ ज़्यादा सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज वाले में आप जाओगे तो वहाँ डिसेंडिंग एयर का भी फिनोमेना, ये ड्राई विंड्स है, ये भी फिनोमेना, तो ये भी गलत है, और ये एनसीईआरटीज में भी दे रखा है ऐसा वाला चीज़, देयरफॉर आई हैव कंसीडर्ड इट एज इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ईजी, डायरेक्टली एनसीईआरटी में दे रखा है कि अगर आपको, कि अगर लेट्स सपोज कि ये वर्ल्ड है, लेट्स सपोज कि ये वर्ल्ड है, तो दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस साउथ अमेरिका, लेट्स सपोज। ठीक है, यहाँ पे ये अटलांटिक है, यहाँ पे यूरोप है एंड ऑल। अगर आपको 20 डिग्री का, आप मान के चलो, अगर आप 20 डिग्री का जनवरी, तो क्वेश्चन कह रहा था, तो क्वेश्चन कह रहा था कि जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है, इंडिया लेट्स सपोज, और उसमें जनवरी मतलब ठंडी पड़ रही है, ओके, ठंडी पड़ रही है, आइसो ठंडी पड़ी, आइसोथर्म विंड इक्वेटर वर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मास एंड पोल वर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द ओशंस। अब आप समझो। ठीक है, ओके, मेरे पास, ओके, यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, ये था, तो लेट्स सपोज दिस इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका। ओके, ठीक है, अगर 20 डिग्री आइसोथर्म यहाँ से आ रहा होगा, 20 डिग्री आइसोथर्म यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि लैंड बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक हीट ये जल्दी कूल होता है और जल्दी हीट भी होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जनवरी, दैट इज ठंडी का मौसम है। ठीक, तो ठंडी का मौसम है तो लैंड ज़्यादा कूल होगा। ठीक है, वाटर का सेम कूलनेस के लिए आपको उसके ऊपर की तरफ थोड़ा जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड सेकेंडली अटलांटिक ओशन का तो एक्चुअल में फिनोमेना ये भी है कि अटलांटिक ओशन में यहाँ से जो वार्म ओशन करंट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ऑल आ रहा था, वो इसको वैसे भी वार्म करता है। ठीक है, तो वार्म करता है तो 20 डिग्री आइसोथर्म को पाने के लिए आपको ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, जितना पोलवर्ड जाएंगे वहाँ और ठंडा होगा। लैंड 20 डिग्री बहुत नीचे ही रीच कर चुका होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जल्दी कूल होता है, ये ज़्यादा कूल होगा, जल्दी कूल होगा एंड जल्दी हीट होगा। ठीक है, तो जो थोड़ा मेस्टअप हो गया है, सॉरी। ओके, तो ये कहता है कि जनवरी दिन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जहाँ पे ठंडी है, आइसोथर्म बेंड इक्वेटर वर्ड, आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटर वर्ड व्हाइल क्रॉसिंग द लैंड मास, यस ट्रू, एंड पोलवर्ड्स व्हाइल क्रॉसिंग द ओशन। ठीक है, क्योंकि ओशन रिलेटिवली गर्म होगा, रिलेटिवली मैं कह रहा हूँ, रिलेटिवली लैंड मास से वो ज़्यादा गर्म होगा, तो ओशन का सेम ठंडा टेम्परेचर जो लैंड पे है उसको लेने के लिए और पोलवर्ड्स की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें 10 डिग्री सेल्सियस को पाना है तो 10 डिग्री सेल्सियस लैंड क्योंकि जल्दी ही कूल हो जाएगा, तो वो इक्वेटर के आसपास वाले एरिया में भी उतना कूल होगा, ऊपर तो और वो बहुत ही ज़्यादा कूल होगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट। सेम चीज़ अगर हमें ओशन में चाहिए होगा, तो ओशन क्योंकि हीटेड, थोड़ा रिलेटिवली ज़्यादा हीट रहता है, तो ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है ना, वो ओशन में ये यहाँ कहीं मिलेगा, पोल के ज़्यादा नज़दीक जा करके
ज़्यादा इन्फ्लुएंस पे मिलेगा। सो ये स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये कह रहा है यस, तो ये कह रहा है इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर देन दैट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सही है, ठीक है। इन जनवरी द एयर ओवर द ओशंस इज वार्मर, यस, देन दैट ओवर द लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यस। लैंड मास ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। तो एयर इसके ऊपर जो भी होगा, जो एयर पार्सल होगा इसके ऊपर, वो ऑब्वियसली ज़्यादा ठंडा होगा, ठीक है। तो ये एंड इट एक्सप्लेन्स डायरेक्टली एनसीईआरटी इसमें दे रखा है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी। एंड हाँ यस, ये तो 2024 का पीवाईक्यू है, 2025 का पीवाईक्यू एग्जैक्टली एज इट इज 24 का प्रीलिम्स का पेपर 2025 में पूछ लिया गया, ये तो बोनस मार्क्स था, ठीक है। इसलिए पीवाईक्यू करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं इसको इजी कंसिडर करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, ये पिछले ही साल का पीवाईक्यू है, तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत टू एक्सपीरियंस, ठीक है। आगे पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स। chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite impermeable rock और least permeable rock। होता भी है ऐसा, अगर आप क्ले के स्ट्रक्चर को देखेंगे, क्ले के स्ट्रक्चर को देखेंगे, इट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। क्ले बहुत होल्ड करता है वाटर को, क्यों? क्योंकि स्पीसीज इतने छोटे छोटे, इतने कम होते हैं इसमें कि ये इट डज नॉट अलाउ द पर्कुलेशन ऑफ द वाटर, तो वाटर सारा जमा हो जाता है, ठीक है। बट लेट्स सपोज कि ये इसमें आपको कंफ्यूजन है, तो हम लोग आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। चॉक इज पोरस एंड हेंस एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है, बिल्कुल। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कि मतलब कोई ऐसा होगा कुछ कि वो नॉट एट ऑल पोरस हो, वो सॉइल है अल्टीमेटली, ठीक है। क्ले नॉट एट ऑल पोरस, ये गलत है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये, ठीक है। सो 2 नॉट 3 इज करेक्ट, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि स्टेटमेंट जो 2 है, जो 2 था चॉक इज पोरस एंड हेंस एब्जॉर्ब वाटर, ये सही स्टेटमेंट था, ये गलत स्टेटमेंट है, तो दोनों तो गलत नहीं हो सकता, ठीक है। इट सेज ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3, 2 एंड 3 में से एक ही करेक्ट है, विच इज सेकंड करेक्ट है, दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, विच एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ये सही भी बात है कि ठीक है, chalk is porous and hence absorb water, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock, ठीक है, एक्सप्लेन करता है इसको, ठीक है। yes, so it was easy, I will consider, क्यों आपको जनरल स्ट्रक्चर पता होता है, चॉक कैसा होता है, क्ले कैसा होता है एंड ऑल, तो मेरे ख्याल से वो उस नॉलेज के कारण ये वाला जो है वो इजी कंसिडर होगा। अगर नहीं भी इजी तो अपन इसको मीडियम में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। विदाउट द एटमॉस्फेयर, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है मैं बताता हूँ, ठीक है। विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सर्फेस, एवरीवेयर, ठीक है। चलो देखते हैं। सेकंड इज हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर, जीएचजी का ग्रीन हाउस गैस का पूरा कंसेप्ट ही यही होता है, जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है। ग्रीन हाउस का कंसेप्ट ये होता है, और ग्रीन हाउस जो हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर है, ठीक है, यही हमारे ये करता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का ये सरफेस है अगर, और इसके ऊपर इनकमिंग सोलर रेडिएशन है, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन जो लार्जर वेवलेंथ वाला होता है, इसको अपन अपनी गैसेस ट्रैप कर लेती है और इस कारण होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर हीट होता है। गैसेस लाइक CO2 आर पर्टिकुलरली गुड एट, यस, काफ़ी इजी, ठीक है। कन्फ्यूज़न है इस चीज़ पे कि विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज, लेट्स व्हाई इट इज कंफ्यूजिंग वाला चीज़, बिकॉज लेट्स सपोज कि अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है और ये सन है, तो जिस टाइम इंसोलेशन हो रहा होगा, और जो सरफेस सन रेज के, अगर ये सन है, ये अर्थ है और सन रेज डायरेक्टली आ रही होगी, तो जो ये वाला पार्ट है ये उस टाइम डायरेक्ट इंसुलेशन में होगा, ठीक है। हाउएवर अर्थ जो मोस्टली रेडिएट हीट होती है वो होती है नॉट ये शॉर्ट वेवलेंथ जो इंसुलेशन वाला होता है उससे नहीं होता है, वो जो रिफ्लेक्टेड रेज होता है उसके कारण होता है। बट टू से कि ये
पूरा का पूरा सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्लीटली फ्रीजिंग इसमें होगा या नहीं होगा वो तो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे इसमें कंफ्यूजन लग रहा है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ने भी इसका डिफरेंट आंसर्स दिया था, ठीक है। तो होल्ड करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये तीनों सही है एक्चुअल। ऐसा है कि जो क्योंकि मोस्ट ऑफ द अर्थ इज हीटेड बाय द रेडिएटिंग सोलर एनर्जी, सोलर वेवलेंथ, ओके। तो अगर इंसुलेशन एक सरफेस के ऊपर पड़ भी रहा है, अगर से सन का पड़ भी रहा है, तो ये इसको हीट उस लेवल पे नहीं कर पाएगा, ऐसा मेरा लगता है। बट देन लेट्स वेट की यूपीएससी क्या मानती है इसमें, ठीक है। 50-50 था ये, 50-50 था, क्योंकि आपको दो पता था बहुत ही इजी ऑप्शंस था एनसीईआरटीज में डायरेक्टली। इस साल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस बहुत सिंपल पूछे गए थे एक्चुअली, ठीक है। सो 2 और 3 में कंफ्यूजन है, 50-50 है, इसको मीडियम कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। राष्ट्रीय गुरुकुल मिशन स्टेटमेंट इतना ऑब्वियस, इतना अच्छा फ्रेम किया हुआ था कि दोनों सही है, ठीक है। तो इट वाज इजी, ठीक। 31 पे चलते हैं। एमिशन फ्रॉम द कार्बन CO2 एमिशन फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन। काफ़ी फैक्चुअल चीज़ है कि 5% है या नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं। देन इट सेज सिलिका बेयरिंग क्ले। सिलिका बेयरिंग क्ले मोस्टली SiO2 के फॉर्म में होता है, दिखता है, मिक्सड विथ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज CaCO3। तो वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट करते हैं, ठीक है, ये करते हैं। लाइमस्टोन is converted into lime. Limestone is converted into lime. Limestone is CaCO3. It is converted into CaO, which is lime. This is lime. Okay, ठीक है। Into lime during clinker production. Yes, for cement manufacturing. ठीक है। अब ये कह रहा है कि क्या ये इसको एक्सप्लेन भी करता है इंडिविजुअली, क्या ये सही है, ये ठीक है। ये भी स्टेटमेंट ठीक था, ये भी ठीक था। अगर आप कुछ बुक्स पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट वाली बुक्स पढ़ेंगे जो भी मार्केट में चलती हैं, आप उसमें देखेंगे कि आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री खास करके मिल जाता है। सो स्टडीज इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम द सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट्स फॉर मोर देन 5% ऑफ द ग्लोबल कार्बन एमिशन। सीमेंट इंडस्ट्री से जो ग्लोबल कार्बन एमिशन उसका 5% निकलता है। तो हम लोग को देखना है कि क्या यहाँ से कार्बन निकल रहा है, क्या CO2 मेजरली निकल रहा है क्या, ठीक है। SiO2 प्लस CaCO3 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा CaSiO3 और प्लस CO2, ठीक है। तो यहाँ तो रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसी तरह CaCO3 अगर इसमें जाएगा तो इसमें रिलीज क्या होगा, CaO प्लस CO2, तभी इक्वेशन भी बैलेंस होगा, ठीक है। तो दोनों जगह निकल रहा है। तो अगर रिस्क लेना है तो बिल्कुल लिया जा सकता है कि हाँ, बट इस 5% का क्या करें नहीं पता है, बट फिर ऑप्शन उस तरीके से है नहीं, तो आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। इस दोनों में से CO2 निकलेगा, इस दोनों क्लिंकर प्रोडक्शन और इस वाले में, ठीक है। तो अब देखते हैं, ठीक है। तो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग से 5% ओके होगा। अगर वन गलत है, लेट्स सपोज इस फैक्ट के कारण 5% है या नहीं है अगर देना, तो कहीं भी ये नहीं है कि 3 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, और हमें पता है कि इससे तो CO2 निकलता है, इससे भी CO2 निकलता है, ठीक है। तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट, नो, मतलब दोनों तो सही है ना, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। नीदर स्टेटमेंट 2 नॉट 3, ये भी गलत है क्योंकि दोनों सही है, ठीक है। अब कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन। दोनों में से CO2 निकल रहा है तो एक एक्सप्लेन कर रहा है, तो दूसरा क्यों नहीं करेगा, देयरफॉर आंसर इज ए। हम लोग इस तरीके से इसके ऊपर पहुंच सकते थे, ठीक है। मीडियम रखा है मैंने इसको, क्यों, क्योंकि बहुत कुछ है कि इस 5% का क्या करना है, ठीक है। बट इसका नीड है नहीं एक्चुअल में। 2 एंड 3 के ही बारे में पूछा, 1 पे कमेंट ही नहीं है, 1 पे कुछ कमेंट ही नहीं है, तो उसको सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो 1 को मान के चलते हैं कि ठीक है सही है। तो फिर 2 भी एक्सप्लेन कर रहा था, 3 भी कर रहा था, बट देन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि आप क्लिंकर प्रोडक्शन, CSI, क्या आप ये कहते कि हाँ सिलिका यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, जो कि ऑब्वियसली किया जाता है, बट ठीक है, मैंने मीडियम कंसिडर किया। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 28th कॉप का था ये, हेल्थ वाले डिक्लेरेशन पे इंडिया ने साइन करने से मना कर दिया, ठीक है। इट बिकम्स मैंडेटरी टू डिकार्बनाइज हेल्थ, तो काफ़ी फैक्चुअल था, जिसको पता होगा उसके लिए बहुत ईजी होगा, जिसको नहीं उसके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। मुझे कन्फ्यूज़न था, मैंने इस क्वेश्चन को शायद छोड़ दिया था, ठीक है। ये फैक्चुअल है, मैं टफ मानूंगा इसको, बट वो इजीली कवर्ड भी था हर जगह पे, वैसा वैसा नहीं, ये मैगजीन्स में कवर्ड था, तो आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है
साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। बहुत बार सुना है हम लोगों ने ये चीज़ कि जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है अर्थ का, जिसके अराउंड अर्थ घूम रही है, ठीक है, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट इसके अराउंड ही घूम रहा है, ठीक है, एंड ये इक्वेटोरियल प्लेन है और ये परपेंडिकुलर है उसका 23.5 डिग्री इसका एक्सिस यहाँ से है, ठीक। सो कह रहा है कि suggests that the shift is taking place in the earth rotation and axis। बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, ये बहुत जनरल नॉलेज टाइप का है कि यस, अर्थ की रोटेशन और उसके एक्सिस में चेंजेस आ रहा है। ये जो एक्सिस होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्चुअली में इसका कुछ रोटेशन पीरियड है कि लाइक आफ्टर एवरी 24,000 ईयर्स और समथिंग ये एक बार अपने आप को पूरा का पूरा रोटेट कर लेता है ये पूरा, तो ये हल्का 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 मूव कर रहा है, ठीक है। जनरल नॉलेज की चीज़ है वो, इफ़ यू नो वेल, अगर नहीं पता तो क्वेश्चन कर नहीं सकते उसका। सोलर फ्लेयर्स इजेक्शंस, जो सन से निकलता है कोरोना से, बॉम्बार्डेड द अर्थ आउटर मोस्ट विद ट्रेमेंडस, हर हमेशा करता है सन कोरोना से जो भी निकल रहा होता है। बट क्या ये जो निकलता है, क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है जो अर्थ की एक्सिस और रोटेशन में जो चेंजेस आएगा, क्या कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्डमेंट से क्या ये चेंजेस आ सकता है, क्या ये इतना इम्पैक्टफुल है या नहीं, देखा जाएगा। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। यस, ये अर्थ है एंड ये पोल है, ये पोल का एरिया है एंड दिस इज इक्वेटोरियल एरिया। जब आइस मेल्ट होगा तो सारा पानी इक्वेटर की तरफ फ्लो करके आएगा, क्यों, ठीक है, इस तरफ फ्लो करके आएगा, ठीक। एंड इसके कारण क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है, मोमेंट, ठीक है, उसको रहने दे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है एंड इस कारण जो है चेंजेस आते हैं, ठीक, आते हैं। बट बहुत कुछ है इसमें समझने को कि क्या ये इसको एक्सप्लेन करता है, ये तो कर रहा है, ठीक है, क्या ये करता है या नहीं करता है, इसलिए मैंने इसको मीडियम कैटेगरी कंसिडर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट, बहुत न्यूज़ में था पिछले साल, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फंड को लेकर के हमेशा से यूएन एफ ट्रिपल सी में डिबेट्स चलती रही है, यूएन एफ ट्रिपल सी में डिबेट्स चलती रही है फंड्स को लेकर के। तो पिछले साल वो फाइनलाइज होने पे आ गया था, तो उस पर बहुत डिस्कशन था। आर्टिकल 6 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड ग्लोबल डिस्कशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक। क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट्स। यस, यही तो पूरा का पूरा था। 6 intends to promote inter-country non-market strategy to reach there। yes, 6.8 जो पिछली बार था, ये न्यूज़ में था तो इसको सब पढ़ाया भी जा रहा था कि 6.8 जो था, आर्टिकल 6.8 जो था इसका, वो नॉन मार्केट स्ट्रेटजीज की बात करता था, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, काफ़ी इजीली करंट अफेयर्स के मैगजीन्स में और पेपर में था, तो मैंने इसको इजी कंसिडर किया, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड पैसिफिक। एक बार को आपको देख करके लगेगा कि ये जो है वो काफ़ी फैक्चुअल है, कोई रिपोर्ट है या कुछ है, किसने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। मैंने इसमें गेस वर्क खेला था, मैंने इसमें गेस खेला और मेरा ये सही हुआ था, बट गेस वाइल्ड नहीं था, इन्फॉर्म्ड था। कैसे था वो बताता हूँ। इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में न्यू डेवलपमेंट बैंक्स ब्रिक्स का बैंक है, ओके, ये ब्रिक्स का बैंक है। ब्रिक्स का बैंक है तो इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एशिया पैसिफिक, एशिया पैसिफिक से लेना देना नहीं है। ब्रिक्स में लेट्स सपोज साउथ अफ्रीका भी है, ठीक है। साउथ अफ्रीका का ना एशिया से कुछ लेना देना है, ना पैसिफिक से कुछ वैसा लेना देना है, ठीक है, नहीं है कुछ लेना देना, ठीक है। तो फिर ब्रिक्स वाला तो हटा दो, ब्रिक्स का जो बैंक है, ठीक है, नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, ठीक है। आईबीआरडी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन है, बनाया गया था रिकंस्ट्रक्शन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड रेविस्ड बाय द वर्ल्ड वॉर 2, उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये और ये तो इजीली एलिमिनेटेबल है, ठीक है। अब बचता है एआईआईबी, ठीक है। एआईआईबी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है। इसका भी पैसिफिक से वैसा कुछ डायरेक्टली लेना देना नहीं, बट एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक वी ऑल नो कि ये एशिया पैसिफिक दोनों मेंबरशिप में वो प्ले करता है, एशिया पैसिफिक वाला मैंने खेला, वो सही हो गया। बट देन
ये एक गैस है एट द एंड, ये गैस है तो मैं इसको टफ मानता हूँ। फैक्चुअल है, टफ है, इधर यू नो और यू डोंट नो, वो भी है, तो मैं इसको टफ ही मानता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट एयर कैप्चर का था, हमेशा न्यूज़ में रहता है। जो भी आप इन्वायरमेंट के लिए जो भी बुक पढ़ रहे हो, एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी में से न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो वो आपको इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कि वे ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, यस। फिर आपको कार्बन मिलेगा, इससे क्या मिल सकता है, कार्बन मिलेगा, कार्बन से हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बन कार्बन से हम लोग प्लास्टिक सब बनता है, फ्यूल बनता है, हर चीज़ बनता है। तो प्रोडक्शन इन दी फूड प्रोसेसिंग, प्लास्टिक प्रोडक्शन, फूड प्रोसेसिंग, वाई नॉट, ठीक है, बिल्कुल करते हैं हम। एविएशन में सोर्स ऑफ कार्बन फॉर कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन, तो हम लोग जो डायरेक्ट एयर कैप्चर, एयर में क्या था, बहुत सारे पार्टिकल था उसमें, CO2 भी था, कार्बन भी था। ठीक है, इस कार्बन को हम लोगों ने कैप्चर कर लिया, कार्बन को कैप्चर करके अगर इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो मीथेन बन सकता है। मीथेन इज अ फ्यूल। एलॉन मस्क, टेस्ला टेस्ला वाला, ही वॉज टॉकिंग अबाउट यूजिंग मीथेन एज अ फ्यूल, ताकि जो इंटर प्लानिटरी मिशंस होगा उसमें ये बहुत काम आएगा। फॉर एग्जांपल जो दूसरे प्लैनेट्स है वहाँ पे मीथेन का एबंडेंस है। ठीक है, मीथेन का एबंडेंस है, तो अगर हम लोग मीथेन को टैप कर सकते हैं एनर्जी के सोर्स में, फ्यूल के सोर्स में, तो वो काम आएगा। उसमें भी था और ऐसे भी एविएशन में काम आता है। तो ये इम्प्लाइड नॉलेज है कि हाँ ठीक है, बिल्कुल कार्बन और हाइड्रोजन को मिक्स करेंगे तो जो बनेगा वो फ्यूल होगा, इथेनॉल। लेट्स सपोज C2H5OH, पूरा इंडिया इथेनॉल ब्लेंडिंग पे चल रहा है। ठीक है, क्या है, कार्बन हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली हो सकता है। ठीक है, सो यस, क्वाइट इजी था ये। ठीक है, उसके बाद रिगार्डिंग पीकॉक टैरेंटुला, देख के मैंने छोड़ दिया था। देख के मुझे पता था पीकॉक छोड़ के तो कुछ भी होगा ये, इट कैन बी एनीथिंग देन पीकॉक। ठीक, तो पीकॉक मैंने छोड़ दिया था क्योंकि जनरली नाम ऐसे होते हैं, ये दिया जाता है कंफ्यूजन के लिए। एक्चुअली एक स्पाइडर है, ये एक स्पाइडर है। ठीक है, नॉट बिकॉज कि मैंने उसको इसलिए छोड़ा था। अभी कह रहा है omnivorous क्रस्टेशियन है, फिर नेचुरल हैबिटेट कहाँ है, एंड देन इन सम फॉरेस्ट एरिया नेचुरल हैबिटेट इज एन आर्बोरियल स्पीसीज। छोड़ दो इन क्वेश्चंस को, ये डेफिनेटली रॉन्ग करवा देंगे आपका, और दिक्कत होगा आपको इस चीज़ में फिर। ठीक है, तो मैंने इसको छोड़ दिया था, मैं इसको टफ भी कंसिडर करता हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके, तो आज हम लोग इतने तक रखते हैं। ओके, वी हैव डन टिल 37, क्वेश्चन नंबर 37। okay, and and this is part one of the series of analysis. Okay, and we are doing 2025 as of now. Okay, तो पहले पार्ट में ही रखते हैं, सेकंड पार्ट हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें हम लोग रेस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं, वी आर लेफ्ट विथ सम 63 क्वेश्चंस। ओके, यस, 63 क्वेश्चंस वी आर लेफ्ट विथ। ओके, हम लोग इसको ट्राई करेंगे कि अगली बार थोड़ा जल्दी करें, एंड पार्ट 2, और अगर नीडेड है तो पार्ट 3 करेंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इस टेक्निक्स को समझें, वेदर फॉर 2025 या फिर 2024, ये भी पेपर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। 2 पेपर, 2 पेज, 2 से 3 पेपर इज इनफ कि आपको समझा दे कि यस, जो एवरेज नॉलेज है उससे पेपर्स निकल जाएगा। ठीक है, आपको 50-50 टेस्ट नहीं देने की ज़रूरत है, नॉट एट ऑल। ये पूरे मार्केट में पता नहीं क्या चल रहा है, आई डोंट नो, जो भी चल रहा है, बट टेस्ट टेस्ट लाइक ये सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पढ़ने का। हम लोग इस पर बात करेंगे। ओके, जब हम लोग प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को लेकर के बात करेंगे, मार्केट में क्या गलत बताया जा रहा है, टेस्ट का क्या चल रहा है एंड ऑल यो। ठीक है, जो भी है, बट देन आपको एटलीस्ट 2 से 3 साल के पेपर्स को सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, कैसे एवरेज नॉलेज पे ये सॉल्व हो सकता है, ये समझ जाने के बाद आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट 2 से 3 पार्ट में हम लोग इसको करने की कोशिश करेंगे। ओके।